الصلاة والسلام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قوله الحق قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات أولاً خدا سے گزارش ہے کہ مرتبہ مرحوم محفوظ استاد محترم خالد مولانا جناب حسین صاحب قبلہ اور اس بستی کے تمام مہمین دوستان اللهم صل على محمد وآل محمد. مند بابا کے راتوا حصہ اللهم صل على محمد وآل محمد. پاک حضرات کے سامنے بارہا مجلس پڑھنے کے لیے آنے کا شرف حاصل ہوا. آج کی جو مجلس بعنوان میں الوداعی مجلس ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مجلس مقصد ہے یا مجلس میں مقصد ہے. جو حضرات ابھی تک کی باہر تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کبھی بھی ساحل پہ کھڑے ہو کر دور سے سمندر کا تماشا دیکھنے والے کشتی کے سوار نہیں کہلاتے. تو لہذا یہ فرش اعضا ایک کشتی کے مانند ہے. تو لہذا جو نجات چاہتا ہے وہ فرش اعضا پر آتا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ دیکھیے، مقصد مجلس نہیں ہے، مجلس میں مقصد ہے. مقصد مجلس نہیں ہے، مجلس میں مقصد ہے. آنسو مقصد نہیں ہے، آنسوؤں میں مقصد ہے. گریہ مقصد نہیں ہے، گریے میں مقصد ہے. ماتم مقصد نہیں ہے، ماتم میں مقصد ہے. آپ کہیں گے ماتم میں کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، جب مجلس پڑھی جاتی ہے تو خالی اگر آپ مجلس کہیں تو خالی مجلس مقصد نہیں ہے. مجلس میں کربلا سنائی جاتی ہے، مجلس میں کربلا سنائی جاتی ہے. دیکھیے، یزید سب سے پہلی مجلس کہاں ہوئی؟ یزید کے دربار میں. میں بہت جلدی اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں، مجھے فضائل نہیں پڑھنا ہے بالکل، بس تھوڑا سا حضرات کے ذہنوں کو آمادہ کر دو اس لیے بیداری کے لیے. جی دیکھیے، سب سے پہلی مجلس کہاں ہوئی؟ بول دیجئے. دربار میں ہوئی نا یزید کے. کہاں پر ہوئی؟ یزید کے دربار میں. دربار میں سب سے پہلی مجلس. اچھا یہ بتاؤ، مجلس چھپ کر ہوئی یا کھل کر ہوئی؟ میں کیا مجلس چھپ کر ہوئی یا کھل کر؟ چھپا کر کی گئی یا بتا کر؟ پہلے یزید کو بتایا گیا، پھر مجلس امام حسین کا آغاز ہوا. اچھا سوال یہ ہے کہ جو یزید زر خرید مفتیوں سے قتل امام حسین کا فتویٰ لے سکتا ہے تو کیا وہ مجلس کے بدعت ہونے کا فتویٰ نہیں لے سکتا تھا؟ میں کیا عرض کروں آپ حضرات کے سامنے، کیا نہیں لے سکتا فتویٰ؟ لے سکتا تھا، لیکن یزید نے اجازت دی. مجلس کی یزید نے اجازت دی. تبھی تو کہنا پڑتا ہے کہ آج کے زمانے کا انسان تو یزید سے بھی بڑھ گیا. یزید نے تو مجلس کی اجازت دی، آج کا انسان کہہ رہا ہے کہ مجلس بدعت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
یزید سمجھ رہا تھا کہ مجلس مقصد ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مجلس میں مقصد ہے۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ رونا مقصد ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رونے میں مقصد ہے۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ ماتم مقصد ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ماتم میں مقصد ہے۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ گریہ مقصد ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ گریہ میں مقصد ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب مجلس پڑھی جائے گی، جب مجلس سنائی جائے گی، کیونکہ اس مجلس کا ایک مزاج ہے، یہ ہر دور کے قاتل کے چہرے سے نقاب کھینچ لیتی ہے۔ اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو ہمیں کبھی نہ پتا چلتا کہ حسین کو قتل کرنے والا کون تھا۔ ان مجلسوں کی بدولت ہی ہمیں معلوم ہوا کہ حسین کا قاتل کون تھا۔ اب جملے کو محسوس کیجئے گا، ان مجلسوں کی بدولت ہی ہمیں معلوم ہوا کہ حسین کا قاتل کون تھا، حسین کو قتل کرنے والا کون تھا۔ دیکھیے ان مجلسوں کا، میں نے کہا ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ انقلاب برپا کرتی ہیں، کیونکہ ان مجلسوں میں کربلا سنائی جاتی ہے۔ جتنے بھی انقلاب آئے سب نے آئیڈیل اپنا سب نے آئیڈیل کربلا کو بنایا۔ بھائی جس ملک میں آپ بیٹھوں میں ہندوستان میں جب اس کو آزاد کرایا تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ میں نے انقلاب کا درس کربلا سے لیا۔ کہاں ہے نا، اسٹیٹمنٹ موجود ہے نا۔ خالی اتنا نہیں، آیت اللہ امام خمینی نے جب ایران کو آزاد کرایا، جب انقلاب لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے انقلاب کا درس کربلا سے لیا۔ خالی انہوں نے نہیں، جب لبنان کو حسن نصر اللہ انقلاب لے کر آئے تو حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم نے انقلاب کا درس کربلا سے لیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، دنیا کی کہانیاں لوگوں کو سلانے کے لیے سنائی جاتی ہیں، کربلا لوگوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہے۔ سلام علیہ محمد وآل محمد۔ کربلا کی کہانی لوگوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہے۔ آپ نے سوچا کبھی کہ کربلا حسین نے کیوں بنائی؟ اتنی بڑی بڑی جنگیں، جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، دونوں اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، لیکن صفحات کے اوپر بس چھپ کر رہ گئی۔ کربلا کی جنگ صرف 3 گھنٹوں کی جنگ تھی، جو آج پوری کائنات کے اوپر موجود ہے۔ کیسی جنگ ہے کربلا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی احساس کیا؟ عزیزو، کربلا کل بھی معجزہ تھی، کربلا آج بھی معجزہ ہے۔ آپ کہیں کس طریقے سے موجود ہوا ہے؟ 1400 برس پہلے ایک مسافر کو شہید کیا گیا تھا، 1400 برس پہلے، لیکن آج بھی لوگ جیسے ہی کربلا کا نام سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ پڑھا نہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس لیے آنسو جاری ہو گئے کیونکہ کربلا لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتی ہے۔ کربلا کا تعلق لوگوں کے دلوں سے ہے۔ خالی کربلا سے شیعہ مانوس نہیں ہے، خالی مسلمان مانوس نہیں ہے، بلکہ حسین نے جب کربلا کو بنایا ہے نا، اس سے انسانیت مانوس ہے۔ جو آپ کے مذہب کو نہیں مانتا کسی کو بھی نہیں مانتا۔ آپ اس ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندو مذہب کے لوگ ہیں، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ عاشور کے روز ہمارے یہاں بہت سی جگہ پہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں ذوالجناح کے قدموں کے اوپر دودھ چڑھاتی ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ دودھ کیوں ان کے ذوالجناح کے قدموں کے اوپر ڈالتی ہیں، تو پہلا بس ساری جواب ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین بابا کا 6 مہینے کا بچہ تھا کہ جسے حسین بابا پانی پلانے کے لیے لے کر گئے تھے، لیکن دشمنوں نے اسے پانی نہیں دیا بلکہ اس کے بدلے اسے تیل دیا۔ اور ہم یہ دودھ ذوالجناح کے قدموں پہ چڑھانے کے بعد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حسین بابا اسے ہندوستان لے کر آ جاتے تو پانی تو دور کی بات، ہم دودھ کی بھی کمی نہ ہونے دیتے۔ آپ نے دیکھا انسانی سے تعلق ہے نا، کیونکہ دنیا جانتی ہے سب کی خطا ہو سکتی ہے، لیکن 6 مہینے کا بچہ کیا خطا کر سکتا ہے؟ 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہوتی ہے؟ عزیزو، 6 مہینے کا بچہ
इमाम हुसैन की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। सिर्फ खाली करबला मुसलमानों तक महदूद रह जाती अगर कुर्बानी अली असगर न होती। अली असगर की कुर्बानी ने करबला को लोगों के दिलों तक पहुंचाया। अजीजों, यही तो चीजें हैं करबला की जो आज तक के मौजूदा बनी हुई हैं, जो आज तक के आपको बुलाए। अजीजों, आपको मालूम है क्या क़यामत हुई? आपको हम सुनाते हैं करबला को आप इतना तड़प कर रोते हैं। भला उस ज़ैनब के दिल से पूछिए कि जिसने सब कुछ मंजर अपने सामने देखा है। कोई उस सैयद सज्जाद के दिल से पूछे कि जिसने सारे मंजर अपनी आंखों के सामने देखे। अजीजों, मकातिब में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब शहीद किया गया तो इस मलऊन ने 12 ज़रबों में इमाम का दिल सर कलम किया। 12 ज़रबों में। आयतुल्लाह सैयद हुसैन बख्श जाड़ा अपने मख्तल में लिखते हैं कि जब इसने पहली ज़रब मारी तो हुसैन के मुंह से निकला अम्मा। जब इसने दूसरी ज़रब लगाई तो हुसैन के मुंह से निकला नाना। जब इसने तीसरी ज़रब लगाई तो हुसैन के मुंह से निकला भैया। अब तीसरी ज़रब के बाद आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा कहते हैं जब भी ज़रब लगाता था बस हुसैन के होठों से एक ही आवाज आती थी। वो आवाज क्या आती थी? हुसैन हर ज़रब को पकड़ कर कहते थे अब्बास, भैया अब्बास। मौला कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। आपकी आवाज बुलंद हो गई। अजीजों, पूरे साल इंतजार करते हो ना, मुहर्रम आएगा तो गिरिया करेंगे, मुहर्रम आएगा तो मातम करेंगे। अलविदाई मजलिस है ना, अपने मौला को अलविदा कह रहे हो ना। पूरे साल ये सोच के गिरिया कीजिए, ये सोच के मातम कीजिए कि जो अगले बरस जिंदा रहेगा वो इस दरगाह के अंदर बैठकर इमाम को कुर्सा देगा। जो अगले बरस जिंदा रहेगा वो इस मजलिस में बैठकर कुर्सा देगा। न जाने कितने अफराद हैं जो पिछले बरस के इस बरस हमारे दरमियान नहीं है, हमारे दरमियान नहीं है। मैं कहूँगा आका हमें माफ कर देना। अरे जो हक मोहब्बत था वो हम अदा न कर सके। आका अगर मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कर देना। अजीजों, कयामत हो गई, कयामत हो गई। तारीख बताती है कि जब शाम गरीबा आ गई था, जब शाम गरीबा आई तो शाम गरीबा में हुर की ज़ौजा एक जाम लेकर आई, वो कुछ खाने के लिए लेकर आई। आपने देखा होगा, आपके यहाँ पे रिवायत है, बहुत सी जगह पे यह मंजर भी पेश किया जाता है। तो वो हुर की ज़ौजा लेकर आए तो जनाब ज़ैनब की खिदमत में आई। और आने के बाद आपको मालूम है शाम गरीबा का क्या हंगाम है। अली अकबर का भी लाशा ज़ैनब ने देखा है, कासिम का भी लाशा ज़ैनब ने देखा है, और मोहम्मद के भी लाशा ज़ैनब ने देखे हैं, अपने माजाए का लाशा भी ज़ैनब ने देखा है। अब वो जैसे ही खाने को लेकर आई, वो आने के बाद कहती है शहजादी कुछ खा लीजिए, रात का वक्त है, सन्नाटा है, ज़ैनब बहुत प्यासी है। जिनकी प्यास का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये कब से प्यासे हैं, क्योंकि मैंने मकातिब में पढ़ा है कि जैसे ही पानी खत्म हो गया था तो बड़ों ने पानी पीना पहले से ही बंद कर दिया था। जब पानी कम रह गया था, हर किसी की ख्वाहिश थी कि बच्चों के ऊपर पानी खत्म ना होने पाए। अजीजों, तारीख बताती है उसने जैसी आकर जनाब ज़ैनब से कहा बीबी ये कुछ खा लीजिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आई। मरतबा ज़ैनब तड़प कर कहती है तुझे नहीं मालूम मेरे भैया का लाशा बड़ी नजरों के सामने पड़ा हुआ है। अरे हुसैन, अरे ज़ैनब किस तरीके से पानी पिए। अजीजों, कयामत हो गई, कयामत हो गई। एक मरतबा हुर की ज़ौजा कहती है बीबी अच्छा आप नहीं कुछ खा सकती, आप नहीं पानी पी सकती, तो कम से कम बच्चों को तो पिला दीजिए। ये बच्चे छोटे हैं, ये बच्चे मासूम हैं। जैसे ही बच्चों का नाम सुना जनाब ज़ैनब ने एक मरतबा सकीना की तरफ देखा। सकीना सो रही थी। जुमले को महसूस करना, तुम दरगाह अबू फजल अब्बास में बैठे हुए हो, मौला की कमीज भी बैठी हुई है। मौला तुम्हारी औलाद को सलामत रखे, मौला तुम्हारी गोदियों को सलामत रखे। अभी वो कैसे ही जनाब ज़ैनब जनाब सकीना के करीब गई है ना, और जाने के बाद शाना पकड़ने के बाद हिलाने के बाद जैसे ही जगाया, एक मरतबा जनाब सकीना कहती फूफी अम्मा क्या हुआ। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है सकीना पानी पियो, पानी का नाम सुनना था। एक मरतबा सकीना खड़ गई, सकीना कहती है फूफी अम्मा का चचा प्यास आ गए।
जितना जहरा को तुम्हारे आंसू पसंद है उतना ही तुम्हारी आवाजें पसंद है। आज तुम्हारा मौला तुमसे रुखसत हो जाएगा, ये अलविदाई मजलिस है। अजीजों, मौला के जाने के बाद हम उजड़ जाते हैं। अरे ये रज़ा खाने उजड़ जाएंगे। आज जो आपको ये दरगाह सजी हुई दिखाई दे रही है, कल दरगाह सजी हुई दिखाई नहीं देगी। अजीजों, कयामत हो गई। मुझसे मेरे भाइयों ने फरमाइश की है खाली में मसाइल पढ़ दो, सुनिएगा। देखो, सैयद सज्जाद जब मदीने छूट कर आए थे ना, जब मदीने आ गए सैयद सज्जाद, तो मुसलसल बस खाली एक ही चीज कहा करते थे कि मुझे मेरी बहन के सवालों ने बहुत ज्यादा दुआया। कौन बहन? 3.5 बरस या 4 बरस की बच्ची है, दोनों रिवायतें ऐसी है। वो बच्ची कभी राह में सवाल करती है, भैया, ये मेरे भैया सज्जाद, ये बताओ क्या अरब का यही दस्तूर है कि 6 महीने के बच्चे का सर 9 के नेज़ा पे बुलंद किया जाए? कभी वो बच्ची कहा करती थी, भैया, ए मेरे भैया, क्या अरब का यही दस्तूर है कि यतीमों को तमाचे लगाए जाए? अजीजों, तारीख बताती है वो वक्त आया, जिंदान में रात का सन्नाटा था, रात का एक पहर गुजर चुका था। सैयद सज्जाद लेटे हुए थे कि सैयद सज्जाद को महसूस हुआ किसी ने कदमों के ऊपर आकर हाथों को रखा है। एकदम सैयद सज्जाद ने अपने कदमों को समेटा और समेटने के बाद क्या देखते हैं? वही बच्ची है जो मुसलसल सवाल करती है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, सकीना, तुम क्यों आई हो? हमें बुला लिया होता, हम खुद चले आते। सकीना कहती है, भैया, आज सवाली बनकर आई हूँ, सवाल का नाम सुनना था। सैयद सज्जाद घबरा गए, अरे मौला तुम्हारी बहनों को सलामत रखे, खुदा किसी भाई से कोई बहन ऐसे वक्त में सवाल न करे, अरे जैसे वक्त में सकीना सैयद सज्जाद से सवाल कर रही है। भाई का क्या आलम है? हाथों में हथकड़ियां है, गले में खारदार दोख है, पैरों में बेड़ियां है, कमर में लंगर है। एक मतलब सकीना कहती है, भैया, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। सैयद सज्जाद ने कहा, सकीना, मांग तो रही हो, लेकिन भाई की हैसियत देखकर मांगना। हाँ भैया, भाई की हैसियत देखकर मांगूंगी। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं, सकीना मांगो। आपको मालूम है सकीना ने क्या मांगा? खुदा ना कोई बहन अपने भाई से मांगे, खुदा ना करे कि कोई बहन अपने भाई से मांगे। सकीना कहती है, भैया, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मुझे नर्म जमीन के ऊपर दफन करना। बोले, कोई गम ना दे, तू सिवाय लगे बदले में करबला करो, तरफ करो। क्या माना सकीना का? भैया, अगर मैं दुनिया से चली जाऊं तो मुझे नर्म जमीन के ऊपर दफन करना। अजीजों, क़यामत हो गई, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। कोई सैयद सज्जाद के दिल से पूछे कि सैयद सज्जाद के दिल पे क्या गुजर रही होगी? एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते, सकीना, उम्र बहुत कम है लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। बहन, ऐसा क्या हो गया? बहन, जो तुमने ये वसीयत की, जो तुमने ये मांगा कि मुझे नर्म जमीन के ऊपर दफन करना? अजीजों, सकीना कहती है, भैया, मराठी में अदस बताओ, भैया, प्यास की किस्में बताओ पहले कि प्यास की कितनी किस्में हैं। एक मर्तबा अजीजों, सैयद सज्जाद कहते हैं, बहन सकीना, सुनो, प्यास की पहली किस्म ये है कि जब प्यास ज्यादा लगती है तो इंसान के होंठ खुश्क हो जाते हैं। सकीना कहती है, भैया, अगर उससे भी ज्यादा लग जाए? फिर सैयद सज्जाद कहते हैं, बहन सकीना, फिर हल खुश्क हो जाता है। फिर कहती है सकीना, भैया, अगर उससे भी ज्यादा प्यास लगे? फिर सैयद सज्जाद कहते हैं, सकीना, फिर सीने में जलन होने लगती है। फिर सकीना कहती है, भैया, अगर उससे भी ज्यादा प्यास बढ़ जाए? फिर सैयद सज्जाद कहते हैं, बहन सकीना, इंसान को कमजोरी का एहसास होने लगता है। फिर सकीना कहती है, भैया, अगर उससे भी ज्यादा प्यास बढ़ जाए? फिर सैयद सज्जाद कहते हैं, सकीना, इंसान को उठते बैठते हड्डियों में से झटकने की आवाज आने लगती है और आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है। एक मरतबा फिर सकीना कहती है, भैया, अगर उससे भी ज्यादा प्यास बढ़ जाए? सैयद सज्जाद कहते हैं, बहन सकीना, सुनो, ये प्यास
लगी प्यास कब बुझी। मकसद नहीं बताते अजीजों, तारीख बताती है ये बच्ची जो रोज पूछा करती थी कि भैया हम कब वतन जाएंगे, तारीख बताती है कि ये बच्ची जिंदान में ही है। अजीजों बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी, बस एक रिवायत पढ़ूंगा। तारीख बताती है कि जब सैयद सज्जाद को रिहाई का हुक्म मिला, रिहाई की खबर मिली, जनाब ज़ैनब के पास आए और आने के बाद कहा फूफी अम्मा हम रिहा हो गए। बीबियों ने जैसे रिहाई का नाम सुना ना, बीबियों ने दुनिया करना शुरू कर दिया। अल्लामा रफ़ी कहा करते थे, हाय रे करबला के कैदी, कैद हुए तो रोए, आजाद हुए तो रोए। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है मेरे लाल सैयद सज्जाद अजीज से कहो कि एक मकान खाली कराए, ज़ैनब अपने भाई का मातम करना चाहती है और हमारा लूटा हुआ अखबार वापस कर दे जो हमसे सामान लूटा गया है और सबों को वापस कर दिया जाए। अजीजों आपने मजलिस में सुना, बस मैं बहुत मुख्तसर करके पढ़ता हूँ, सुनिएगा अजीजों। तारीख बताती है कि जब असबाब आ चुका, असबाब के बाद अब सर आना शुरू हुए। जैसी सर आना शुरू हुए तो अजीजों तारीख बताती है, अल्लामा पढ़ा करते थे कि औरतों ने खलखा बनाया हुआ था, जैसे किसी का सर आता था बीवी उसके सर को लेती थी और लेने के बाद उसका मातम करना शुरू कर देती थी और उसकी वारिसा को पुरसा पेश करना शुरू कर देती थी। अजीजों तारीख बताती है कि हबीब का सर आया, हबीब का मातम होता रहा। ज़ैनब का हबीब तुमने हक़ दोस्ती निभा दिया, हबीब तुम्हारा शुक्रिया। अजीजों हुर का सर आया, ज़ैनब ने अपनी आगोश में लिया। ज़ैनब ने कहा हुर तुमने तुम्हारा शुक्रिया, तुम ऐसे वक्त में मेहमान हुए कि हम तुम्हें पानी भी न पिला सके, हम तुम्हें पानी भी न पिला सके। अजीजों तारीख बताती है कि कासिम का सर आया, फरवा ने बढ़ के आगे लिया, कासिम का मातम होता रहा। अकबर का सर आया, अकबर का मातम होता रहा। और मोहम्मद के सर आए, बीबियों ने कहा कि क्या इनकी माँ जिंदा नहीं है। अजीजों तारीख बताती है जनाब फिजा ने कहा कि नहीं ऐसा मत कहो, इनकी माँ जिंदा है। उसने ये वादा किया अपने भैया का मातम करेगी, अपने बेटों का मातम नहीं करेगी। अजीजों तारीख बताती है कि सबके सर आते रहे, सबके सर आते रहे। अल्लामा पढ़ा करते थे, बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी। अल्लामा पढ़ा करते थे कि जो भी कोई सर आता था तो जिंदान के ऊपर एक शोर उठता था, एक शोर उठता था, हटो हटो उसका सर आ रहा है, हटो हटो फला का सर आ रहा है, हटो हटो उसका सर आ रहा है। अजीजों अल्लामा पढ़ते थे लेकिन अब जो सर आया अब जिंदान के ऊपर शोर नहीं उठा, शोर नहीं उठा, बल्कि घबराई हुई आवाजों से, थर्राई हुई आवाजों से औरतों ने कहा मालूम हो जाओ तो किसका सर आ रहा है, अब्बास का सर आ रहा है। तारीख बताती है अब्बास का नाम सुना, अरे बीबियां तड़प गई, बीबियां तड़प गई। अल्लामा पढ़ते थे कि तख्त में अब्बास का सर रखा हुआ था, अब्बास के सर के ऊपर खून से भरी हुई चादर रखी हुई थी। अजीजों तारीख बताती है कि तख्त और आगे बढ़ा, ज़ैनब इस हल्के से बाहर निकली, ज़ैनब और आगे, तख्त और आगे, ज़ैनब और आगे, नहीं तो देखेगा तख्त और आगे, ज़ैनब और आगे। एक मरतबा ज़ैनब तख्त के करीब आई, तख्त के करीब आने के बाद, तख्त के करीब आने के बाद सर से खून में भरी हुई चादर को हटाया, हटाने के बाद 32 साल के गैरतदार भाई का सर ज़ैनब जैसी बहन ने अपनी आगोश में लिया, आगोश में जैसे ही लिया अल्लामा पढ़ते थे कयामत हो गई। अरे सरे अब्बास जब तक तख्त में था आंखें खुली थी, ज़ैनब ने जैसे ही आगोश में लिया आंखें बंद हो गई। ज़ैनब ने कहा भैया अब्बास आंखें खोल दो, बाजुओं के नील नहीं दिखाऊंगी, भैया अब्बास पर्दे की शिकायत नहीं करूंगी, भैया अब्बास आंखें खोल दो ये नहीं बताऊंगी 2200 मील चलाया गया, भैया अब्बास कोई शिकायत नहीं करूंगी। अजीजों तारीख बताती है मातम हो गया, बीबियों ने मातम करना शुरू किया। बीबियों का बस एक ही बहन था, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा, अब्बास मेरी अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा। अजीजों इसी असना में एक कैदी जिंदान के गोशे से उठा, दीवारों का सहारा लेता हुआ या अली मदद कहता हुआ करीब ज़ैनब आया। आने के बाद कहता फूफी अम्मा क्या रो चुकी हो मेरे चचा को? हाँ मेरे लाल रो चुकी हूँ। एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा लाओ मेरे चचा को मेरे हवाले कर दो। अजीजों तारीख बताती है